Hello guys, this is Sir Mahad Amir and SirMahadAmir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Hello guys, this is Sir Mahad Amir और आज हम लोग जो है मई जून 2025 का पेपर 2-1 कंप्लीट करेंगे. It's a paper of 1 hour 15 minutes. May June 2025 paper 1 paper 2-1 and let's start and complete this exam paper. अच्छा, for question number 1, starting off with define acceleration. So acceleration is basically rate of change of velocity. It's going to be rate of change of velocity. When it comes to acceleration, it's going to be rate of change of velocity. Okay. In an experiment, two objects A and B are released from the side of the building as shown in figure 1.1. Object A is released from rest at the height of 14 meters above the horizontal ground. Object B is released with an initial upward velocity at a height of 3.6 meters above the ground. Okay, okay. Both objects take the same time to reach the ground and they do not collide with each other. Air resistance is negligible. What he is explaining in the question is that object A is released from rest and it will definitely go down like this, and object B is released and it goes up, then it would come down and then it would go down as well. So this is the path for the both of the balls A and B, object A and B. Calculate the time taken for object A to reach the ground. For object A to reach the ground, since it's starting from rest and I've got the displacement as well, that's 14 meters, I'll be using S equals ut plus half at square. Object A is released from rest. That means initial velocity is going to be 0. S is going to be 14 is equals to ut will be 0 since initial velocity is 0 plus that's half at square 1 over 2. Acceleration is going to be 9.81 and then times squared. So you'll just have to multiply that 14 times 2. पहले आप इसको multiply करेंगे, then you'll divide it by 9.81. You'll get the value and then you'll root that and your answer is going to be 1.68. So 1.7 seconds is the time taken for the object A to reach the ground. Whereas, use your answer in B1 to calculate U. You have to get the value of U, initial velocity. Acha. So the formula goes like this. Again, S equals ut plus half at squared. Kids, the object goes upwards. It would cover a displacement, will come down, that displacement will be 0 and then it reaches the ground over here and the displacement is going to be 3.6. Total displacement covered by the object is going to be 3.6. क्योंकि ये पहले ऊपर गया and then it came down, displacement 0 हो गई. When it went down, इसकी अभी सिर्फ displacement would be 3.6 और इस पूरे path को cover करने के लिए इसको same time लगेगा as it is given in the question. The object takes same time to reach the ground. मैं same formula use कर रहा हूँ. S is going to be 3.6 in this case is equals to U is unknown, time is 1.7 plus 1 over 2, acceleration is 9.81, time is 1.7 squared. First I'll use 1 over 2 times 9.81 times 1.7 squared and then whatever the value is that will be subtracted from 3.6 minus I'm getting as 14.17 is equals to U times 1.7. 3.6 minus the answer and then the whole thing is to be divided by 1.7 and you'll get the value of U as 6.2. Negative 6.2 meters per second. Negative is like an optional sign because it's velocity direction indicate करता है negative sign. Whatever suits you, आप इसको negative लिखें, ना लिखें, doesn't matter. ठीक है? U की value I'm getting as negative 6.2. That's the first two parts of part A, question 1, part B. Okay, क्या कह रहा है? In a second experiment, object B is released from the same height and given the same initial speed as in B, but a release angle to the vertical as shown in figure 1.2. Okay, for object B now it's released at an angle, so it would be a projectile motion. It would go like this. State and explain whether the time taken for object B to reach the ground is less than, the same or greater than time in B1.
अच्छा, for the initial question, object was projected vertically upward. So the height gained by the object would have been more. Over here, the height gained by the object would be less. And we all know कि projectile motion में vertical component जो होता है और horizontal का आपस में कोई relation नहीं, horizontal की speed तो same रहती है. But अगर इसके vertical component की बात करूं तो vertical component of the velocity would be less compared to the vertical component in the first part, क्योंकि उसमें सिर्फ vertical component ही था. तो पहले तो इस बात को समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियली रिलीज किया गया और एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल पर रिलीज किया गया. ये ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट गेन करेगा, इट वुड कम डाउन टू द ग्राउंड. इसको एक लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. Whereas अगर मैं इसको इस एंगल पर रिलीज करता हूं तो लेट्स सपोज इसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है दैट वुड हैव बीन दिस. तो अगर मैं इसकी वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूं तो ये और ये, इसको एक लेस डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. तो अगर मैं इसको आंसर करूंगा तो आई वुड आंसर इट अलोंग दीज लाइंस दैट सिंस वर्टिकल component of velocity is less at an angle, object will gain less height and will take less time to reach the ground. ये मेरा परफेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनता है. By considering energy, state and explain the effect of the change in release angle on the speed at which B reaches the ground. एनर्जी को कंसिडर करते हुए स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन रिलीज एंगल ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इट रीचेस द ग्राउंड. बड़ा अच्छा सवाल है. ठीक है. बाय कंसिडरिंग एनर्जी इन सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट सेम हाइट एंड गिवन से. अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है. ऑब्जेक्ट इज रिलीज एट द सेम हाइट एंड गिवन द सेम इनिशियल स्पीड. मतलब इस केस में, केस 2 में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है जो यहां पे, इधर भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है. अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट पे सेम एनर्जी देता हूं तो अब लाजमी सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन इट वुड अगेन कम बैक टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और हिट कर देगा ग्राउंड पे, वो कन्वर्जन होगी. इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा ग्रेविटेशन में कन्वर्ट होगा, बाकी काइनेटिक में रहेगा, एंड में वो बाकी भी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. अब अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को इनिशियली सेम एनर्जी देता हूं और वो दोनों ऊपर अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके जाते हैं और बट वो एनर्जी उनके पास सेम है, तो वही एनर्जी एड सब्ट्रैक्ट होगी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो हमारे पास अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ना उसको फर्क पड़ेगा ना उसको फर्क पड़ेगा. तो सिंस दोनों की इनिशियल एनर्जी सेम है तो ओवरऑल जो एंड में एनर्जी होगी वो भी सेम आएगी. तो याद रखिएगा द स्पीड वुड बी सेम, देयर वुड बी नो इफेक्ट, नो देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड. और इसकी वजह बहुत जरूरी है दैट इनिशियल एनर्जी इज सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स. ना हाइट में फर्क था, therefore they will land with same speed. मार्क स्कीम का आंसर मैंने अभी तक रीड नहीं किया, इसका मुझे नहीं पता है, बट ये कि अलोंग दिस लाइन इसको आंसर करना है कि इनिशियल एनर्जी क्योंकि सेम है तो वापसी जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो एनर्जी सेम होगी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. That is define acceleration and ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. Let's move on to question number 2. All right guys, question number 2 क्या कहता है? State principles of movement. So according to principle of movement, for an object to be in rotational equilibrium, the sum of clockwise movements should be equal to the sum of anti-clockwise movements. For an object to be in rotational equilibrium,
sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments. Alright guys, three objects A, B and C are placed on the horizontal beam. The beam is in equilibrium as shown in figure 2.1. The beam is uniform and has a length of 6 meters. ठीक है? The pivot is at the midpoint, okay, of the beam. The object A has a mass of 60 kilograms and is at a distance at one end of the beam. B is at X distance and has a mass of 45 kilograms. Object C has a mass of 80 kgs and is at the other end of the beam. तो ये वाला distance जो होगा हमारे पास, this would be 3. Likewise, अच्छा जो ये वाला distance होगा, that would be again 3. This is going to be X. Sum of clockwise moments is equals to sum of anti-clockwise moments. So for object A, the mass is 60 times 9.81. ये इसकी force आ जाएगी times the distance plus इसी तरफ दूसरा जो force है, that's B, 45 times 9.81 and it would be multiplied by X equal to, and clockwise को इधर लिख लिया मैंने, that would be 80 times 9.81 multiplied by 3. तो force into distance था, weight into distance from the pivot, weight into distance from the pivot is equal to weight into distance from the pivot. weight के लिए मैंने mass को gravity से multiply किया. All right. डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेते हैं. दैट वुड बी, चलें 180 plus 45 x is equals to 1.33. जो आपका आंसर आ रहा है, द वैल्यू ऑफ x इज 1.3 मीटर्स. ठीक है जी, 1.3 मीटर्स इसकी वैल्यू आ रही है. दैट मेक्स सेंस. मैंने इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर लिख दिया है. आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई इससे माइनस करा दें, देन डिवाइड 45 टाइम्स 9.81 एंड you'll get the value. ठीक है. A beam of is 0.80 meters above the horizontal ground. जो बीम है ये अभी भी 0.80 meters above the horizontal ground है. पहली बार बताया. ठीक है. Object A is removed and replaced by a spring. क्या बात है, इंटरेस्टिंग बात है. Object A is removed and replaced by a spring. Object A को हटा के एक spring से replace कर दिया है, connected to the ground and the beam as shown in figure 2.2. After the change, the beam is again horizontal and is in equilibrium. The position of B and C are unchanged. The spring has an unstretched length of 0.59 and obeys Hooke's law. क्या बात कर दी. सर ऑब्जेक्ट ए जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा था इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दैट वाज 60 टाइम्स 9.81 व्हिच वाज इक्विवेलेंट टू 588.6 न्यूटन्स. ये फोर्स ए डाउनवर्ड लगा रहा था. अगर अभी भी उसी सिचुएशन में हर एतबार से ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो स्प्रिंग भी इसके अंदर जो टेंशन है दैट वुड बी 588.6. ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. ये बात इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है. आपने कहा सर F इज इक्वल्स टू KX, मुझे K की वैल्यू निकालनी है. जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रही है दैट वुड बी 588.6. ठीक है, क्योंकि वो सेम फोर्स है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है. स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है. एक्सटेंशन, स्प्रिंग 0.80 मीटर अबव द ग्राउंड है और ओरिजिनल जो लेंथ दी हुई है दैट इज 0.59. तो एक्सटेंशन हो जाएगी 0.80 माइनस 0.59. इतना खिंचा हुआ है तभी तो वो डेफिनेटली खिंच गया, 0.80 तक पहुंच गया. 588.6 डिवाइडेड बाय माइनस 0.59, आपकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 2802. तो 2800 न्यूटन्स पर मीटर का जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. याद रखिएगा, जितनी फोर्स वो ऑब्जेक्ट लगा रहा था, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली फोर्स और स्प्रिंग के लगाने वाली फोर्स इक्वल होगी. ठीक है, ये फोर्स उस वेट से बराबर होगी क्योंकि कुछ और चेंज नहीं किया, सेम इक्विलिब्रियम है. ऊपर से ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया. ठीक है,
अभी भी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, बहुत आसान है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2। के की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, दैट्स 2800। एक्सटेंशन की वैल्यू हमें पता है 0.80 माइनस 0.59, इसका स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूलाज वर्किंग आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तभी जो है आपकी वैल्यू आ रही होगी, वरना आपकी वैल्यू नहीं मजा देगी। आपकी वैल्यू आ रही है 61.74, तो 62 जूल्स इसको कर देते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए हो। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये तो ओ लेवल्स आईजीसीएसई से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, एन इलेक्ट्रिक कार इज पावर्ड बाय अ मोटर, द कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 35 meters per second along a straight horizontal show road as shown in figure 3.1. There is a total resistive force of 1750 newtons acting on the car. Calculate the power transmitted to the wheels of the car by the motor. अच्छा, पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला हम लोग एक पढ़ते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। बाय द व्हील्स की बात कर रहे हैं, तो व्हील्स रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स जो व्हील्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट इज 1750 एंड दे आर मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 35। तो इट्स वेरी सिंपल, पावर आपके पास आ जाएगी 1750 मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज गोइंग टू बी 6.1250 आ रही है, तो 6.1 1 2 3 4 10 to the power of 4 watts, ठीक है। हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, लेट्स कीप इट दैट वे। आप चाहें तो 61,000 भी दे सकते हैं, सेम थिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आंसर क्योंकि मार्क्स की रिसेंट पेपर्स में हमेशा देरी होती है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि राइट योर आंसर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, व्हाई गिव अ चांस टू द एग्जामिनर यार। Calculate the useful work done by the motor when the car travels a distance of 17 kilometers. अच्छा, 17 kilometers means 17,000 meters में हमें useful work done निकालना है। Work done is force into displacement covered by the motor. तो मोटर ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की है? इट्स रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1750, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की? दैट इज 17,000। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस या वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, इतना इस जो है हमने कवर किया है, विच इज क्वाइट इक्वलेंट टू 3297। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 30000000 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 3.0 टाइम्स 10 to the power of 7 जूल्स का वर्क डन, ठीक है। 2.97 नहीं लिख सकते थे, तो मैंने 3.0 कर दिया है। दैट इज एक्चुअली जो वैल्यू आ रही है 2.975 टाइम्स 10 to the power of 7 आ रही है, ठीक है। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में डायरेक्टली नहीं हो सकता, 1 में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वो वर्क डन है जो किया गया। फिर समझ लीजिएगा, यूजफुल वर्क डन बाय द मोटर। मोटर का काम क्या है कि भाई गाड़ी को चलाना, सेम स्पीड पे इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही थी। मोटर का वर्क डन जो होगा दैट इज द फोर्स जो मोटर रेजिस्ट कर रही है टाइम्स द डिस्टेंस वो लेके गई, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मोटर हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 600 वोल्ट्स एंड द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 65% करंट इन द मोटर। अच्छा 85% की एफिशिएंसी है, दैट इज यूजफुल पावर ओवर टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। यूजफुल पावर आउटपुट पूरा लिख देता हूं यार, ऐसा ना हो बाद में पता नहीं क्या लिख के आ जाते हैं पेपर में। यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। 85% एफिशिएंसी है। यूजफुल पावर आउटपुट जो हो रहा है, जो पावर आउटपुट कोई चीज दे रही है, वो हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो रहा है। पावर इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला था। तो यूजफुल पावर हमारे पास 600 मल्टीप्लाइड बाय करंट जो नहीं पता। जो टोटल पावर इनपुट है दैट इज दिस 6.1 टाइम्स 10 to the power of 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर बाय द मोटर द ट्रेवलिंग, ठीक है, सही है। नहीं, मैंने उल्टा कर दिया। द इलेक्ट्रिक पावर इज पावर्ड बाय द मोटर,
तो मोटर जो पावर दे रही होगी वो टोटल पावर दे रही होगी, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारी पावर आई है दैट इज द यूजफुल पावर जो उसको लेके जा रही है आगे, ठीक है। तो ये मैंने उल्टा कर दिया, सही है। तो टोटल पावर आउटपुट, यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 85% का साइन ये लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने वहां मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइडेड बाय 100 divided by 6.1 times 10 to the power of 4. The value of current that I'm getting is equivalent to 119.6, that is 120 amperes. 120 एम्पियर का करंट हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये मेरे ख्याल से जो है इज द करेक्ट वैल्यू। 120 एम्पियर्स का करंट आ रहा है, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये इंटरेस्टिंग आंसर था। समझ आ गई मेरी बात यार कि जो गाड़ी चल रही है वो इससे चल रही है, ये गाड़ी की पावर है जो टोटल है, जिसको वीआई से निकालेंगे टोटल पावर इनपुट है। आउटपुट पावर हम लोगों ने निकाली कि इतनी पावर आउटपुट हो रही थी बाय द व्हील, और मैंने उसके बाद जो है यूजफुल वर्क डन भी निकाल दिया, तो यूजफुल पावर वही है, और उसको मैंने फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है। द कार इन बी नाउ reaches a slope as shown in figure 3.2. The car continues down the slope at the same speed in B. Sit and explain the effect, if any, on this of the slope on the air resistance acting on the car. अच्छा। एयर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? एयर रेजिस्टेंस सिर्फ डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द कार पे, ठीक है। स्पीड ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो एयर रेजिस्टेंस तो सेम होगी, द वैल्यू एयर रेजिस्टेंस विल बी सेम क्योंकि स्पीड सेम है। द करंट इन द मोटर, करंट निकालना है, तो करंट हमारे पास जो है, अब ठीक है, अब गाड़ी डाउन द स्लोप जा रही है, तो डाउन द स्लोप जाने के लिए मोटर हैज टू प्रोड्यूस लेस पावर एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल also be converted in kinetic energy। क्योंकि हम डाउन द स्लोप जा रहे हैं, तो अगर मोटर को लेस पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एंड देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू वी आई, अगर पावर लेस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सो करंट विल ऑल्सो डिक्रीज, करंट भी डिक्रीज होगा। पहले पावर ज्यादा देनी थी क्योंकि वोल्टेज तो सेम है ना, वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू है, पावर पहले जो है डिक्रीज करनी पड़ी थी, वो ज्यादा देनी पड़ी थी क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन स्पीड में मूव कराना था। अभी उसी स्पीड में मूव कराना है, तो मैं क्यों सेम ज्यादा करंट दूं? ज्यादा करंट दूंगा तो गाड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर सेम स्पीड में मूव कराना है, तो जब मेरी गाड़ी डाउन द स्लोप जा रही है तो डेफिनेटली उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो बी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कीप द कार इन द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। देयरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट विल बी लेस, देयरफॉर द रिक्वायरमेंट, बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर विल बी लेस। पावर क्योंकि लेस है तो ऑब्वियसली करंट भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3 फॉर May June 2025 paper 2-1. All right, question number 4 बोलता है state the principle of superposition. Principle of superposition हमें क्या कहता है? That when two waves overlap, the sum of individual displacement is equal to the total displacement. Total या resultant displacement. Sum of individual displacement is equal to the total displacement। जो भी होती है, दो waves सुपर इम्पोज करती हैं। लेक्चर्स आप सबने लिए होंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप ईयरली देख रहे हैं। Light of wavelength 7.2 times 10 to the power of 6 meters is incident normally on the double slit as shown in figure 4.1. The screen is at a distance d from the double slit, ठीक है। The double slit and the screen are parallel, very good, that's always that. The separation of the slits in the dark slit arrangement is 0.16 millimeter. The resulting interference pattern on the screen contains 9 dark fringes, okay, ठीक है, 9 dark, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये हमारे पास जो है, मैं फ्रिंज सेपरेशन निकाल लेता हूँ फ्रिंजेस के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फ्रिंज कितना है, 3.2 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर रहा हूँ। ये वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3। ये हमारी जो है फ्रिंज सेपरेशन या डिफरेंशिएशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल्स टू AX/D। ठीक है, हमें इस सवाल में D निकालना है, तो इट वुड बी AX डिवाइडेड बाय लैम्डा। ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है। A की वैल्यू दैट 0.16 मिलीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.16 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3। अभी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस निकाल लिया, 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3। और वेवलेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है, दैट इज 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7, 7.02 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7। ये आप तीनों चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, 0.16 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3। आंसर इज टू बी डिवाइडेड बाय 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7। आपकी वैल्यू आ जाती 0.89 मीटर्स। क्या बात है, डी की वैल्यू हमारे पास 0.89 मीटर्स आ रही। ठीक है, सवाल क्या बोलता है, द स्लिट सेपरेशन इज नाउ ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। अच्छा, स्लिट सेपरेशन को डिक्रीज कर रहा हूं 0.16 से 0.04 तक। स्लिट सेपरेशन मैं डिक्रीज कर रहा हूं। ठीक है जी, लैम्डा डी ओवर एक्स इज इक्वल्स टू ए। स्लिट सेपरेशन शुरू में 0.16 थी, उस वक्त हमारी जो है, जब 0. अभी देखा ना हम लोगों ने भाई, जब स्लिट सेपरेशन 0.16 थी तो हमारे पास जो फ्रिंज की सेपरेशन है दैट इज 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3, या फिर 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3 थी। और वो हमारे पास, अच्छा सेंटीमीटर में तो ले लें तो 4 टाइम्स 10 टू द पावर -3 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारी जो स्लिट सेपरेशन 0.4 थी। ठीक है, तो हमारे पास सर पहला सवाल क्या बोलता है, जब हमारी स्लिट सेपरेशन 0.16 है तो ये वैल्यू यहाँ कुछ लाया करती। ठीक है, क्योंकि अभी हमने निकाला कि इस पे, यहाँ इसने दिया हुआ भी था कि इस स्लिट सेपरेशन पे फ्रिंज सेपरेशन कुछ ये है, तो ये हमें पता है कि भाई ये थी। अब क्या बोल रहा है कि इसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास जो है दी हुई है, दैट इज 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7, और डी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, और हम ए की वैल्यू चेंज करते जाते हैं। ठीक है, 0.16 से 0.12 लेके आते हैं तो पता लगाते हैं कि एक्स क्या आता है। ठीक है, तो उसके उस कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स निकालते जाते हैं और उनको हम पॉइंट करते जाते हैं। तो बेसिकली जस्ट यू आर जस्ट प्लॉटिंग अ ग्राफ। ठीक है, 0.89, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो जो 6.408 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7 को हम अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करके एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0.12 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, सेंटीमीटर को मीटर में लाजमी कन्वर्ट करना है, तो 5.34 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -4। एक्स की वैल्यू यार कुछ गलत सी आती है, लैम्डा डी ओवर ए को मिलीमीटर को मीटर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6.408 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 0.12 टाइम्स 10 टू द पावर -3। आपकी वैल्यू जो आ रही है सरकार, वो आ रही है 0.534 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 कुछ यहाँ लाया करता होगा। ठीक है, इसी वैल्यू को हम जो है 0.08 से भी निकालते हैं। जीरो 0.08 से भी निकाल लेते हैं। हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज सर 0.8। सर यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लाई कर रही है। ठीक है, 0.08 जब मैं स्लिट सेपरेशन रखी है तो एक्स की वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर आ रही है। 0.04 पे भी निकाल लेते हैं।
हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.16। हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 मार्क करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सर वैल्यू आ रही है 1.6, तो ये यहाँ आ रही है। तो जो हमारा ग्राफ बन रहा है सर वो कुछ एक परफेक्ट कर्व बन रहा है नेगेटिव ग्रेडियंट का। करना कुछ भी नहीं है सर, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। देखो ये वैल्यूज ये वेरी करवा रहा है, इनकी वैल्यूज हमें बताता जा रहा है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज अपने फॉर्मूले से निकाल के मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरा ड्रॉ कर देना। 3 नंबर का सवाल है, मुझे तो फ्री के लग रहे हैं, बट ये पेपर में समझ आ जाए तो क्या ही बात है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। खैर दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है? यूज डेफिनेशन ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ टू ड्राइव द वेव इक्वेशन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैं यार बचपन से डेरिवेशन करा रहा हूं, आज आ गई है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे? स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ओवर टाइम, सॉरी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हेन इट कम्स टू स्पीड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम्स 1 ओवर टाइम पीरियड। क्योंकि वेव की दुनिया में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू इट्स वेवलेंथ, एंड जो टाइम लगता है उस वेवलेंथ को कवर करने में दैट इज टाइम पीरियड। तो सिंस 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड, डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू वेवलेंथ। तो अलोंग दीज लाइंस आप इसको डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मैं हमेशा करवाता हूँ ओ लेवल्स में, IGCSEs में, ए लेवल्स में पूछ भी जाती है, ठीक है। कुछ भी अननेसेसरी नहीं होता, ठीक है। मूविंग ऑन, the source of sound waves of frequency 236 Hz is traveling at a constant velocity of 20 meters per second. अच्छा जी। A stationary observer has a microphone connected to a CRO. The microphone detects the sound waves as the source moves directly towards the observer. ठीक है, source is moving towards the observer. ठीक है जी, ठीक है। Observer is stationary, जो source है वो towards the observer move कर रही है। The resulting trace on the CRO is shown in figure 5.1. The time base of the CRO is 1 milliseconds per division. Calculate the frequency of the sound wave. Frequency was equal to 1 upon time period. इस वेव यहां से बनना शुरू हुई and it completed over here. कितनी divisions लगी इसको? 1, 2, 3, 4 divisions लगी, ठीक है। It took 4 divisions. हर division 1 millisecond की है, तो 4 divisions जो होंगी will be equal to 4 milliseconds. तो frequency would be equal to 1 upon 4 milliseconds. आपकी जो frequency आ रही होगी that would be 250 Hz. That is the frequency of the sound wave detected by the microphone. Determine the speed of sound in air. अच्छा, साउंड की वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 236 है, साउंड की डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है 250 है। स्पीड निकालने के लिए आई एम यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर जो होगी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर 2 फॉर्मूले पढ़े थे डॉपलर के, मैं रिवाइज करा देता हूँ कि भाई एक तो है कि ऑब्जर्वर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हो और ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो, प्लस और माइनस का फर्क था। इसकी बहुत डिटेल है लेक्चर में, मैं भी इसको बिला वजह लंबी नहीं करना चाहता, बट आप सब डेफिनेटली ये पढ़ के आ रहे होंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला था व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 250, सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी दैट्स 236, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूले में लिखी हुई है। v की वैल्यू निकालनी है एंड स्पीड एट विच द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं सर ये बात क्लियर हो जाए। 250v माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 236v, ठीक है जी। सो 14 इज इक्वल्स टू 5000, 14v इज इक्वल्स टू 5000। आपकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज 360 मीटर्स पर सेकेंड, 357.14 आ रही है। सो 360 मीटर्स पर सेकेंड, अगेन वेरी सिंपल, क्योंकि साउंड की स्पीड आसपास 300-350 के बीच में होती है, तो आंसर सीम मेक सेंस एज वेल। ये अच्छा सवाल था, ठीक है। थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट इसमें यूज हुआ। सर एएस मुश्किल नहीं है, पेपर्स भी मुश्किल नहीं होते। मैं जून 2025 का पेपर कर रहा हूँ, लास्ट ईयर आया था। पता नहीं जो है बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग वीक है, तभी उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस
पैटर्न पे नहीं आ रहे होते। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ and let's do the working of question number 6. Guys, two question left. Question number 6, a nichrome wire x of length 45 centimeters and the cross section area of 4.7 times 10 to the power of negative 7 meters square is connected into the circuit shown in figure 6.1. The resistance of x is 1.1 ohms. The cell has electromotive force of 1.3 volts and the negligible internal resistance. Calculate the current in x. X में current निकालना है. It's a good question. ठीक है. हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, वोल्टेज इज 1.3, करंट इज 1.1, सॉरी रेजिस्टेंस इज 1.1, करंट निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1.2 एम्पियर्स, 1.18 आ रहा है। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन निक्रोम इज दिस, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन टाइम्स द एरिया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास करंट की वैल्यू 1.2 आ चुकी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इसने क्वेश्चन में बताया हुए हैं इन द एसआई बेस यूनिट्स, तो उसकी कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चार्ज इज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 19 एंड एरिया हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 4.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 7। आप बस कैलकुलेटर का काम है बॉस, कैलकुलेटर कुछ नहीं है। एएस फिजिक्स इतनी आसान है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे बच्चे इतने कम थ्रेशोल्ड में इतना परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स इतने वीक है, उनको ये नहीं पता कि कब क्या चीज यूज करनी है, और उसके बावजूद भी सर वो नंबर नहीं ला पाते। तो एवरेज वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट आ रही है दैट इज 1.87 है, तो उसको 2.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4 मीटर्स पर सेकेंड करेंगे। ठीक है जी, ये देख लेता हूँ कि सारी वैल्यूज सही डाली हैं। नेगेटिव 7, यस, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द निक्रोम वायर। रेजिस्टिविटी निकालनी है सर निक्रोम वायर की। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रेजिस्टेंस टाइम्स एरिया ओवर लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर आपके पास 1.1 है, एरिया इज गिवन दैट इज 4.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ नेगेटिव 7, और जो लेंथ है दैट इज 45 सेंटीमीटर्स। यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर्स। पूरी चीज आप कैलकुलेटर में डाल देंगे। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एएस फिजिक्स से ज्यादा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। 1.1 times 10 to the power of negative 6 ohms meter. That is resistivity. Wire Y is identical to wire X. Wire Y is added to the circuit in parallel with wire X as shown in figure 6.2. Said and explain the effect, if any, on the change on the reading on the ammeter. जी, देखिए अगर मैं दूसरी वायर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो the total resistance of the circle will reduce. जब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किल रिड्यूस हो जाएगी, इवेंचुअली जो है करंट विल इंक्रीज। क्या टोटल करंट विल इंक्रीज एंड एमीटर की रीडिंग जो है, एमीटर रीडिंग विल इंक्रीज एज वेल। इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन एक्स, अच्छा सवाल है यार। देखो बहुत अच्छा सवाल है। टोटल करंट बढ़ गया क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गई, बट इस निक्रोम वायर के रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें जो करंट है ना वो उतना ही जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस वायर है, इसका रेजिस्टेंस सेम है। जो करंट ऐड हुआ वो डेफिनेटली कंबाइन हो गया, हमारे पास पैरेलल सर्किट में पाथ्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे नो चेंज होगा, नो चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज current is same in wire X. वायर एक्स का करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसके सारी वैल्यूज सेम ही रहेंगी क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस भी सेम है, उस पर लगने वाला वोल्टेज भी सेम है क्योंकि सेल ही सेम है।
तो उस वायर की रेजिस्टेंस सेम है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। सिंस उसकी वैल्यू ऑफ करंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसके बाद उसमें कैसे जो है हमारी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ऑन दैट नोट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी वर्किंग कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। The question number 7 states that nitrogen 12 is an unstable isotope of nitrogen that decays by the emission of radiation of carbon 12. Complete the full nuclear equation for the decay, including the particle involved. अच्छा जी, कार्बन 12 डीके करता है, तो डेफिनेटली कार्बन 12 सेट्स 12 and 6, तो बीटा पॉजिटिव डीके होगा, बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा, ठीक है। एंड न्यूट्रिनोस भी बनेंगे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। नाइट्रोजन का जो है, अब हो रहा क्या है इसमें, बेसिकली हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू अ न्यूट्रॉन। तो अगर आप पार्टिकल फिजिक्स पे जाएं तो आपको ये बात याद होगी, वेन एवर प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू अ न्यूट्रॉन, जब हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ हमारे पास एक चीज़ निकलती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कन्फर्म इक्वेशन हो जाएगी। तो व्हेन प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू अ न्यूट्रॉन, इट एमिट्स पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव सेम बात है, ठीक है। कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, न्यूट्रॉन 12 6, कार्बन 12 6, पॉजिट्रॉन एंड देन न्यूट्रिनो, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। Hydrogen 1 is an isotope of hydrogen and atom of hydrogen 1 comprised of a proton with an orbiting electron. The antiparticle equivalent to hydrogen 1 comprised of antiproton with an orbiting positron. The antiquark is an antiproton. Antiquark in the antiproton are the antiparticles of the quark in the proton. State the charge on the positron in terms of elementary charge. Positron पे charge क्या होता है हमारे पास, +1 E. Set the group and class of fundamental particle in which positron belong. Leptons में पॉजिट्रॉन्स कहाँ बिलोंग करते हैं, लेप्टॉन्स में जो है होते हैं। ये लेक्चर लाजमी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पॉजिट्रॉन्स जो है फर्मियंस की, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो फर्मियंस की हमारे पास फॉर्म थी, उसमें पॉजिट्रॉन्स लेप्टॉन्स में लाया करते हैं। ये लेक्चर डिटेल्ड है, देखिएगा, एक लेक्चर में पूरा टॉपिक मैंने समझाया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। In table 7.1 state the flavors and charge on 3 antiquarks that comprise of antiproton. अच्छा, antiproton में 3 कौन से quirks होंगे, तो हमारे पास anti up and anti down, ठीक है। तो antiproton जो है हमारे पास, अगेन प्रोटॉन का जो होगा उसी का एंटी जो है antiproton हो जाएगा। तो प्रोटॉन हमारे पास अप डाउन से बनता है, तो हमारे पास अप डाउन से बनता है, तो एंटीप्रोटॉन एंटी अप और एंटी डाउन से बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटी अप, या आप ही लिख सकते हैं कि एंटी क्वार्क का नाम दे रहा है, एंटी अप एंड एंटी डाउन। चार्जेस बड़े जरूरी हैं, ये भी याद होने चाहिए कि एंटी अप का चार्ज जो होता है दैट्स -2/3 एंड एंटी डाउन का +1/3। ऑन दैट नोट हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। इट वाज अ गुड एग्जाम, मजा आया, काफी टाइम लगा, मैं भी बहुत थक गया हूं, बट चले आपके ऊपर फेवर होगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड टेक केयर गाइस।